R.P. Bhardwaj, convener of Srinagar Keshapuram CP Study Circle, welcome all the participants in today's seminar. Today we are going to discuss a very important topic, tax implications on share transactions. It will be addressed by very senior member of our profession, CA Rano Jain ji, ex-ITAT member. I request our founder convener R.K. Gupta ji to formally introduce the speaker and start the seminar. Thank you, R.P. Bhardwaj ji. We are privileged to have C. Rano Jain ji with us, who is an ex-ITAT member. And the topic for today's deliberation is income tax implications on share transactions. Share transactions, as we know, are a complicated matter, and there are various tax implications on purchase, sale, transfer. So how to account for those transactions? How to particularly take care of the income tax angle in such cases? What happens in case of gifts of shares? So these are some of the questions definitely to which our participants are looking for answers. And who can be a better person than Rano Jain ji, who is an expert on income tax issues. So with this, we have invited Sri Rano Jain ji to deliberate on the issue and guide the members regarding the various income tax implications in case of share transactions. Rano Jain ji, please, it's yours. Shall I start? Yes, ma'am, please. Thank you, Gupta ji. Thank you, Bhardwaj ji. Good evening, everyone. And thank you once again, Srinagar Keshapuram CP Study Circle for inviting me. So it's like my home, क्योंकि मैं रहती भी यहीं अशोक विहार में हूँ, मेरा ऑफिस भी NSP में है. Lately, I was having a deliberation on real estate transaction. So वहाँ पर there were so many questions, so many queries. I realized why do we find complexity in taxation of real estate transactions or of course जैसे गुप्ता जी ने बोला share transactions also. The reason is that there is no dedicated chapter on share transaction or real estate transaction in the income tax act. And that is very right, very fair, because income tax has divided all the incomes into only 5 categories, and capital gain and business income are 2 of those. So we have to decide. मैं उसमें real estate में भी I told everyone, don't get don't get scared with these topics. बहुत easy हैं. These are really easy once you get the knack of it. आपको एक बार जब समझ आने लगता है ना कि क्या करना है. And the point is, once you decide whether it is going to be under that capital gains or business income, almost 50% of the problem is solved. But the share transactions give one more problem. Share transaction taxability is also a little different than the other heads. उसमें अलग से कुछ provisions दिए हैं, अलग से sections दिए हैं जो ये बताते हैं कि share transactions अगर आपने करी हैं during the year तो उसकी क्या tax implications होंगी. Not the calculation of the income, but how to tax them. उनके rates भी different हैं. तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है. And when my team was preparing this presentation, I realized that I have to dedicate more time on the taxability rather than the other provisions. Since other provisions are really very simple, but still we have to go through that for 2 reasons. One, firstly to warm us up, warm up exercise तो जरूरी होती है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होता. And the other is for the completion of the whole presentation. Everything has to be complete and self-contained. So what we have done is we have made a presentation wholly on share transactions. But I think जो मुझे feel आ रही है while deliberating on this chapter or on this topic, I think मैं शायद शुरू के जो provisions हैं उन पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना चाहूँगी. Because problem आती taxation में ही है. मेरे पास बहुत सारी queries आती हैं कि मैडम हमने unlisted shares बेचे हैं तो उस पर क्या टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, listed बेचे हैं हमने बाहर बेच दिए, off market बेच दिए, उस पर कितना टैक्स लगेगा. Things are really simple,
लेकिन कुछ चीजों को बेसिकली समझना बहुत जरूरी है। आई रिमेम्बर ये वाले प्रोविजंस तब नहीं होते थे जब हम पढ़ाई कर रहे थे, वे बैक, बहुत पुराने हम लोग, तो उस टाइम ये वाले प्रोविजंस नहीं होते थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हुई है, क्योंकि शेयर्स वेयर्स आपको पता है उस टाइम में तो बहुत लोग बस खरीदा बेचा कर देते थे। अब तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड पोर्टफोलियोज होते हैं, देयर आर स्पेशल पोर्टफोलियो मैनेजर्स एंड ऑल। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा टैक्सेबिलिटी को भी, टैक्स इम्प्लीकेशंस को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। लेकिन आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इन चीजों को सिंप्लीफाई करें। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ अपनी प्रेजेंटेशन एंड आई शेयर माय स्क्रीन। भारद्वाज जी, कैन यू सी माय स्क्रीन ना? आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस मैडम, बिल्कुल नजर आ रही है। थैंक यू वेरी मच। अब इसको शुरू कर देते हैं। लेकिन गुप्ता जी, एक प्रॉब्लम मुझे आ रही है इसमें, जस्ट वन प्रॉब्लम। आपको मुझे आप लोग नजर नहीं आ रहे हैं। इट्स लाइक एक्चुअली मैडम होता क्या है, हम ना अपना वीडियो जानबूझ के ऑफ कर लेते हैं, सुनते हैं, नहीं और नहीं, उससे क्या होता है कि ना एक डिस्ट्रैक्शन नहीं होती दूसरे लोगों को, और हम अपना ऑडियो भी म्यूट रखते हैं। हाँ, लेकिन सुनते रहते हैं। लेकिन मेरे स्क्रीन पर सिर्फ मेरी पीपीटी आ रही है। चलिए ऐसे ही करते हैं। बस जूम में साइड वर्ड्स वो आती रहती हैं आपकी स्लाइड्स में, whether you are there or not. Anyways, we'll start. नहीं, वो आपके साइड से ऐसा कुछ है। अगर आप अपने यहाँ से करेंगे तो आपको अपनी, हाँ, जैसे हमें आपकी फोटो नजर आ रही है और स्लाइड्स नजर आ रही है, रिकॉर्डिंग में भी ऐसा ही आएगा। ये स्लाइड आगे बढ़ रही है, एक बार आप इस पर क्लिक, हाँ, यस, नाउ व्हाट इज डू ए ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर, ट्रांसफरी, यस, ठीक है। पेज नंबर 2 इज विजिबल, प्लीज कंटिन्यू। बड़ी बातें करते हैं शुरू में, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल, एवरीवन नोज, लेकिन वो बहुत जरूरी है क्योंकि बेसिक्स वहीं से आते हैं। कोई भी एक शेयर ट्रांजैक्शन होती है, मेरे पास कुछ शेयर हैं जो मैंने बेच दिए या किसी को दे दिए, या जैसे गुप्ता जी ने कहा मैं गिफ्ट भी कर देती हूँ कभी कभी, या किसी ने मुझे दे दिए। तो जब शेयर ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो टैक्सेबिलिटी किस किस के हाथ में आती है, कब आती है, कैसे आती है? तो एक तरह से वहां पे बेसिकली दो पार्टीज होती हैं, ट्रांसफरर होता है, ट्रांसफरी होता है। अब ट्रांसफर कैसे होते हैं, यू ऑल नो। मैं तो देखिए सच बताऊं, मैं तो शेयर्स का काम बहुत कम करती हूँ, इनफैक्ट करती ही नहीं हूँ। आप तो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे जो बहुत ज्यादा शेयर्स में डील करते हैं, बिकॉज इट्स एन इन थिंग, आजकल सभी लोग करते हैं, और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाई तो बहुत ही ज्यादा करते हैं। चलिए, तो आपको पता है उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं उसको सेल करने के या ट्रांसफर करने के। एक तो स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसके थ्रू आप बेचते हैं। लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं तो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बिकती हैं। और आजकल तो इतना ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड सिस्टम हो गया है कि मुझे पता भी नहीं होता कि मेरे शेयर्स किसके पास गए हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन देयर इज नो कंपल्शन फॉर मी टू सेल ऑल द लिस्टेड सिक्योरिटीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको ऑफ मार्केट भी बेच सकती हूँ या मैं गिफ्ट कर सकती हूँ, जैसे गुप्ता जी ने बोला था। तो गिफ्टिंग में तो ऐसा कुछ स्टॉक मार्केट की जरूरत ही नहीं है, मैं बस उसके नाम ट्रांसफर कर दूंगी क्योंकि गिफ्ट किया है, पैसे तो लेने ही नहीं है। तो ये मोटा मोटी दो तो सिर्फ पार्टीज होती हैं, एक ट्रांसफरर होता है, एक ट्रांसफरी होता है। और जो ट्रांसफर है वो या तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगा या ऑफ मार्केट होगा। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत सिस्टमेटिकली हम चलने वाले हैं। पहले हम ट्रांसफरर की देखेंगे टैक्स लाइबिलिटीज, कब कब कहाँ कहाँ कैसे आती है। और सच बताऊं, यही मेन क्रक्स है। ट्रांसफरी का तो बहुत छोटा मोटा सा है, और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू है या ऑफ मार्केट है, वो सारा जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ट्रांसफरर के केस में ही आती है। तो मेनली ये सब्जेक्ट ट्रांसफरर की टैक्सेबिलिटी को ही डील करता है। चलिए, तो एक एक करके देखेंगे। पहले ट्रांसफर कि अगर कोई अपने शेयर्स ट्रांसफर करता है तो उसको क्या टैक्स लाइबिलिटी आएगी। देखिए, मैंने शेयर्स ट्रांसफर करे तो मेरे हाथ में क्या टैक्स बनेगा, इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट मूड क्वेश्चन इज वेदर आई एम होल्डिंग द शेयर्स एज इन्वेस्टमेंट और स्टॉक इन ट्रेड। जो मैंने पहले भी बोला था कि अगर एक बार ये डिसाइड हो जाएगा ना, तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज आपको जरूरत ही नहीं है फिर कहीं ज्यादा मारामारी करने की। अब देखिए, शेयर्स मैं होल्ड कर रही हूँ जिनको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ।
अब वो इन्वेस्टमेंट है या स्टॉक इन ट्रेड है। इनकम टैक्स एक्ट में एज सच कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौन से सिचुएशंस में इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी या कौन से सिचुएशंस में स्टॉक इन ट्रेड माना जाएगा। बट द पॉइंट इज कि ये बहुत जरूरी है डिसाइड करना इन्वेस्टमेंट है या स्टॉक इन ट्रेड है। अब ये कैसे डिसाइड करें? मैंने जो शेयर्स ट्रांसफर किए वो मेरी इन्वेस्टमेंट थी या मेरा स्टॉक इन ट्रेड था। बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी ऑल नो इन्वेस्टमेंट होती है, स्टॉक इन ट्रेड वो होता है जो मैं अपने बिजनेस में इस्तेमाल करती हूँ। अगर मैं गारमेंट्स का बिजनेस कर रही हूँ तो गारमेंट्स मेरा स्टॉक इन ट्रेड होता है। ऐसे मैं शेयर्स में भी डील कर सकती हूँ, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि शेयर्स में हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए रखूँ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि मेरी इंटेंशन क्या है शेयर्स को रखने की। जब मैंने शेयर्स खरीदे या मेरे पास कहीं से आए और अब जब मैं उसको ट्रांसफर कर रही हूँ तो मेरी इंटेंशन क्या थी, मैंने किस इंटेंशन से वो शेयर्स अपने पास रखे। लेकिन इंटेंशन इज अ वेरी डिफिकल्ट टर्म, क्योंकि इंटेंशन बड़ी माइंड के अंदर होती है। यू हैव टू गो इनसाइड द माइंड ऑफ अ पर्सन टू नो व्हाट इज हिज इंटेंशन। अब ये लॉ कैसे डिसाइड करें, कोर्ट्स कैसे डिसाइड करें, ऑफिसर्स कैसे डिसाइड करें कि मेरी इंटेंशन क्या है। तो उसमें बहुत सारे जजमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि इस तरह के डिस्प्यूट्स बहुत हुए हैं। देखो फर्क पड़ता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे टैक्सेशन कैसे होता है, स्टॉक इन ट्रेड का टैक्सेशन कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट का कैसे होता है, क्योंकि दोनों के रेट्स डिफरेंट होते हैं। तो कई बार भाई एसएससी को तो जो सूट करता है वो कह देता है मैं इन्वेस्टमेंट रखा हुआ था या मैंने स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ था, लेकिन डिपार्टमेंट को इश्यूज रहते हैं उसमें, वो अक्सर इसको डिस्प्यूट कर देता है कि भाई आपका स्टॉक है या आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें कुछ सीबीडीटी ने सर्कुलर्स दिए। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन था 1827 डेटेड 31 अगस्त 2089, जिसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात उन्होंने नहीं करी थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ कुछ केसेस का जिक्र किया था सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल, और ये बताने की कोशिश करी थी कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स को असेसिंग ऑफिसर कंसीडर कर सकता है व्हाइल डिसाइडिंग वेदर इट इज एन इन्वेस्टमेंट और इट इज स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद एक और सर्कुलर आया 15 जून 2007 में, जिसने भी ऑलमोस्ट वही बातें कही, लेकिन कुछ क्योंकि इट वाज अ व्हाइल 11 और 7 18 साल हो गए थे, तो कुछ और केसेस का जिक्र आया। तो उन इंस्ट्रक्शन से ऑफिसर्स भी और हम भी ये क्यों ले सकते हैं कि क्या क्या बेसिस होते हैं जिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी ये डिसाइड कर सकता है कि whether the shares were being held as an investment or as a stock in trade। उसकी बेसिक जो 2-4 चीजें थी वो हमने यहाँ लिखी हुई हैं। whether I am a trader और I am an investor, ये तो बड़ी बेसिक सी बात हो गई। क्या मैं शेयर्स में डील करती हूँ या नहीं करती हूँ, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए जनरल परसेप्शन ये होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो इन्वेस्टमेंट तो जैसे होता है ना, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री, तो हमें सिखाया जाता था कि आपकी कुछ इनकम होती है और इनकम में से कुछ आप खर्चे कर लेते हो, जो बचता है उसमें से सेविंग्स, उनको सेविंग्स कहा जाता है, और सेविंग्स में से आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होती, ऐसा माना जाता है। तो अगर बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उनको ट्रेडिंग माना जा सकता है। ऐसी मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजेक्शंस मतलब कितना भारी आपने कोई ट्रांजेक्शन करी है। देखिए कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो क्योंकि जैसे मैंने कहा सेविंग्स में से करता है तो बड़े ध्यान से करता है, ऐसा एक परसेप्शन है जनरली। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि भाई वो बड़े ध्यान से करता है तो वो बहुत भारी मैग्नीट्यूड उसमें नहीं लगाएगा, बहुत बड़ी बड़ी मैग्नीट्यूड की ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। उसके बाद सोर्स ऑफ फंड्स, जो मैंने पहले कहा कि आप इन्वेस्टमेंट तो अपनी सेविंग्स में से करते हैं, तो अगर आपने लोन्स ले रखे हैं, एडवांसेस ले रखे हैं और आप उसमें से शेयर खरीद रहे हैं तो नॉर्मली ये माना जाता है कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पैसा ब्याज पर नहीं देता है। देन पास्ट हिस्ट्री, पिछले सालों में आप क्या कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम नॉर्मली इस तरह के केसेस में ये डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं कि देखिए मैंने तो पिछले साल में भी ये इन्वेस्टमेंट ही रखी हुई थी, तो मेरी इन्वेस्टमेंट आपने मानी थी, आपको अभी भी इन्वेस्टमेंट माननी पड़ेगी। ऐसे ही फ्यूचर ट्रेंड्स कि मैं अगले सालों में क्या कर रही हूँ। मेरे पास एक केस आया था अभी थोड़े दिन पहले, इनफैक्ट उसकी असेसमेंट चल रही थी, तो
जो कंसर्न सीए था, ही कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक कि मैडम एक बात बताइए, कोई असेसी है उनका जिसके पास कुछ एग्रीकल्चरल इनकम्स हैं, लैंड्स हैं बहुत सारी, इनफैक्ट बहुत सारी, तो बोले कि वो उसमें हमारा ये डिस्प्यूट आ रहा है कि वेदर दिस इज इन्वेस्टमेंट और दिस इज माय बिजनेस। मेरा ये कहना है कि ये इन्वेस्टमेंट है। तो असेसिंग ऑफिसर ये कहता है कि आपने पिछले सालों में क्या किया, इसको इन्वेस्टमेंट रखा हुआ था या स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ था वो दिखाइए, और अगले सालों में क्या किया। तो उनका कंफ्यूजन ये था कि क्या असेसिंग ऑफिसर अगले सालों का कुछ पूछ सकता है। Then I told him definitely वो पूछ सकता है, and it is a relevant consideration to decide whether the lands are held as investment or stock in trade. तो ये ट्रेंड्स देखे जाते हैं। अभी एक लेटेस्ट जो इनका सर्कुलर आया सीबीडीटी का, दैट इज डेटेड 29th of February 2016। इसमें भी उसी तरह की कुछ बातें कही गई, कुछ केसेस का जिक्र हुआ, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई। उनका ये कहना था कि अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब कोई लिस्टेड शेयर्स हैं जो किसी असेसी ने 1 साल से ज्यादा रखे हुए, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स में तभी होता है जब आपने उसको 12 महीने से ज्यादा अपने पास रखा हो। और वो ये कहता है कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है और ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये मेरी बिजनेस इनकम नहीं है। तो असेसिंग ऑफिसर उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं करेंगे, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, और ये माना जाएगा कि अगर वो कह रहा है तो वो ठीक है। लेकिन इसमें उन्होंने एक राइडर लगाया कि 1 साल में अगर आपने ये कह दिया ना कि आपका लॉन्ग टर्म जो आपके पास गेन आ रहा है वो दैट इज आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप अगले साल अपना स्टैंड चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अभी भी इश्यूज हैं कि वेदर इट इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट और स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगी कि एक ही एसएससी चाहे तो 2 पोर्टफोलियोज भी रख सकता है। जैसे मैं कोई शेयर ब्रोकर हूँ, मैं शेयर्स का काम करती हूँ, तो डेफिनेटली शेयर्स मेरे स्टॉक इन ट्रेड होंगे, तो मैं उसको जब बेचूंगी तो वो मेरे बिजनेस इनकम में आएगा। लेकिन मैं चाहूँ तो मैं एक अलग पोर्टफोलियो अपनी इन्वेस्टमेंट का भी रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इट्स वेरी लॉजिकल, इट्स वेरी फेयर कि भाई कोई इंसान बिजनेस कर रहा है वो एक अलग बात है, कोई बिजनेसमैन क्या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकता है। तो ये भी अलाउ किया गया इस वाले सर्कुलर। अरे गुप्ता जी, ये मेरी स्लाइड फिर आगे नहीं सरक रही। मैडम एक बार इस पर क्लिक करिए फिर आगे सरकेगी। क्या होता है काफी देर तक अगर हम माउस क्लिक नहीं करते ना, नाउ इट्स ओके। यस चलिए, हाँ जी। आई एम सॉरी, ये दिक्कतें मुझे थोड़ी सी रहती हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है मैडम, हमारे साथ भी होता है सारा। मैं शायद उस वाले जॉनर को बिलोंग करती हूँ ना। हम लोगों ने तो कंप्यूटर बहुत बड़े होने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 बातें हो गई कि या तो शेयर्स को मैं इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड कर रही थी या स्टॉक इन ट्रेड। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि ट्रांसफरर के हाथ में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। अब मैं ये भी बता दूं कि ट्रांसफरर अगर इन्वेस्टर है, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, तो मेन जितना फोकस होगा ना हमारा, मेन इस पर होगा इफ यू आर होल्डिंग द शेयर्स एज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि असली कहानी इसी में आती है। बिजनेस में तो बड़ा सिंपल है, लेकिन वो भी पढ़ेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश कर रही हूँ। अब implications in the hands of owner of shares where shares are held as investment। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली उस पर अगर कोई भी बेचने पर या ट्रांसफर करने पर कोई भी गेन होगा तो वो कैपिटल गेन होगा, लॉस होगा तो कैपिटल लॉस होगा, तो दैट वुड बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। और सिर्फ इसी केस में, इसी सिनेरियो में आपको सेक्शन 45 टू 55A में जाने की जरूरत है। इफ यू आर अ बिजनेसमैन, प्लीज रुकिए, उसकी बात बाद में करेंगे। तो कैपिटल गेन्स की बात करते हैं। I hope I am clear till now, क्योंकि ये this is the basis, इसके बिना बात नहीं बनेगी। First you decide whether you are holding the shares as investment or stock in trade. Once you have decided that you are holding the shares as investment, then your income will be taxable under the head capital gains. Only then you are required to go to sections 45 to 55A। तो अब आगे हम इसको पढ़ेंगे कि कैपिटल गेन्स में शेयर की टैक्सेबिलिटी क्या होती है। चलिए, अब चार्जेबिलिटी, दिस इज टू
एलिमेंट्री, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ द डेलिब्रेशन मैं इसको पढ़ देती हूँ। 45(1) में चार्जेबिलिटी आती है, जो कैपिटल गेन्स की चार्जेबिलिटी बताती है। ये कहता है एनी प्रॉफिट्स और गेन्स राइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल save as otherwise provided in section 54, 54B and all up to 54H be chargeable to income tax under the head capital gains and shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place. This is too elementary. All of us know कि किसी साल में अगर मैंने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है तो ये वाली एग्जेम्पशंस को छोड़कर बाकी जो अमाउंट होता है वो उस साल में टैक्सेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। लेकिन आप नोटिस करेंगे इसमें 3 मेन टर्म्स आती हैं, ट्रांसफर, कैपिटल एसेट और प्रीवियस ईयर, जिसमें ही इन टर्म्स में ही कुछ कुछ झमेले हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए एक एक करके उसको भी समझ लेते हैं। ट्रांसफर कैपिटल एसेट प्रीवियस ईयर। चलिए ट्रांसफर की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 47 में दी है। इसको भी मैं पूरा पढ़ देती हूँ, तो मुझे फील नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा इसको डेलिब्रेट करने की जरूरत है, बिकॉज वी ऑल नो दीज एलिमेंट्री थिंग्स। ट्रांसफर इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट और द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयरइन or the compulsory acquisition thereof under any law, or in a case where the asset is converted by the owner thereof into or is treated by him as stock in trade of a business carried on by him, such conversion or treatment or the maturity or redemption of a zero coupon bond or any transaction, ये मैं नहीं छोड़ रही हूँ because this is more concerned with real estate transactions. Everyone knows that. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 53A की बात कर रहे हैं। तो इसमें बाकी तो बड़ा ही जनरल है, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन इतना नहीं होता है शेयर्स में। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इन केस वेयर द इज कन्वर्टेड। Rosie Garg ji, kindly mute yourself. Rosie Garg, please mute yourself. In a case where the asset is converted by the owner thereof into or is treated by him as stock in trade of a business carried on by him, such conversion or treatment. जो मैं पहले कह रही थी, जो सबसे बेसिक चीज मैंने बोली थी कि भाई फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड वेदर इट्स अ बिजनेस एसेट, स्टॉक इन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। लेकिन कभी ऐसा भी तो, बट यू कैन कीप 2 पोर्टफोलियोज ऑल्सो। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं शेयर्स का काम करती हूँ, मैं बिजनेस करती हूँ और मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, एंड वन फाइन मॉर्निंग आई डिसाइड कि इस इन्वेस्टमेंट को मेरे को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसको भी ट्रांसफर माना जाता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। अब मेरे ख्याल से ये मैं छोड़ सकती हूँ, दिस इज वेरी एलिमेंट्री और इसका बहुत ज्यादा रोल शेयर ट्रांजेक्शन्स में नहीं है। चलिए अब ये जो टर्म्स हैं, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या होता है। सेल, सम एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, मूवमेंट ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, मूवमेंट ऑफ कंसिडरेशन, हमें सबको पता है सेल क्या होती है। एक्सचेंज, a reciprocal transaction of two properties changing hands, मैंने कुछ शेयर दे दिया आपसे, उसके बदले में कुछ शेयर ले लिया, कुछ और ले लिया। Relinquishment, to renounce or surrender a possession of right or right. A relinquishment takes place when the owner of a property abandons his right in the property or withdraws himself from the said property. जैसे होता है ना, मुझे इनहेरिटेंस में कुछ मिला, मैंने कहा यार मुझे नहीं चाहिए, मेरे भाई को दे दो, that is relinquishment. For example, a co-owner of a property having definite and ascertained share relinquishes his share in the property, amounts to transfer and therefore is subject to capital gains taxation. ये relinquishment होता है। Extinguishment is the cancellation or destruction of a right, quite often because the time for enforcement has passed. For example, waiting more than 4 years after the due date, ये extinguish हो जाना, अपने आप ही किसी राइट का खत्म हो जाना। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। चलिए अब कुछ एक्सेप्शंस हैं ट्रांसफर के मीनिंग की। मेन जो बेसिक मीनिंग था वो मैंने आपको बता दिया, सेल, एक्सचेंज, ये वो। लेकिन कुछ इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए इनकम टैक्स एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, वो सेक्शन 47 में आते हैं
उनके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, बाकी आप 47 पढ़ सकते हैं, उसमें थोड़ी डिटेल है लेकिन उसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर डीलिंग विद शेयर ट्रांजेक्शन ओनली। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ का अगर पार्टीशन होता है, आपको पता है इनकम टैक्स में तो कोई पार्शियल पार्टीशन तो होता नहीं। इनकम टैक्स में अगर पार्शियल पार्टीशन होता है तो उसकी एक अलग टैक्सेबिलिटी होती है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम माना जाता है, नॉट पार्टीशन। इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ टोटल पार्टीशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अगर एचयूएफ का टोटल पार्टीशन होता है और उसमें आपको कोई शेयर मिलता है तो वो आपका ट्रांसफर नहीं माना जाता। अब उसकी टैक्सेबिलिटी कब होगी? जब आपको वो जो शेयर्स मिले हैं वो आप जब उसको अल्टीमेटली ट्रांसफर करेंगे। मैं ट्रांसफर को सेल ही बोलूंगी नॉर्मल उसमें। चलिए, गिफ्ट विल इररिवोकेबल ट्रस्ट एंड नॉट ईसॉप्स। मतलब अगर आपको ईसॉप्स मिले हैं कंपनी से या आपको गिफ्ट में मिली है, विल में मिली है, इररिवोकेबल ट्रस्ट में मिली है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। लेकिन जब उसको फर्दर में ट्रांसफर करती हूँ तो वो ट्रांसफर माना जाता है। इनकी टैक्सेबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर मुझे इनहेरिटेंस में मिलते हैं कोई शेयर्स तो जिस वक्त मुझे मिलते हैं उस टाइम इसको ट्रांसफर नहीं माना जाता। अब ध्यान से देखिएगा, शेयर्स फ्रॉम होल्डिंग कंपनी टू होली ओन्ड सब्सिडरी एंड वाइस वर्सा, ट्रांसफर इज एन इंडियन कंपनी। देखिए, एक कंपनी जो होली ओन्ड होल्डिंग कंपनी है किसी सब्सिडरी, उसकी सब्सिडरी जो है उसके 100% शेयर्स उसके पास है, तो अगर वो होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को कुछ शेयर्स ट्रांसफर करती है तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता, प्रोवाइडेड जिसको ट्रांसफर करी है, जिस कंपनी के पास वो शेयर्स आ रहे हैं वो इंडियन कंपनी है, मतलब सब्सिडरी इंडियन कंपनी है। मतलब एक फॉरेन होल्डिंग कंपनी भी अपनी 100% इंडियन सब्सिडरी कंपनी को अगर शेयर्स देती है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता। इसका वाइस वर्सा मैंने क्यों लिखा है, उल्टा क्यों होता है? ऐसी है, अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है 100% सब्सिडरी, वो कुछ शेयर्स होल्डिंग कंपनी को देती है, अपनी होल्डिंग कंपनी को देती है, और जिसने शेयर्स लिए हैं यानी कि होल्डिंग कंपनी जो है, इन दिस एग्जांपल होल्डिंग कंपनी, पहले वाले में सब्सिडरी थी, वो होल्डिंग कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। अमलगमेशन डीमर्जर, वो जो एज पर लॉ अमलगमेशन डीमर्जर होते हैं उसमें अगर शेयर्स का कुछ आदान प्रदान हुआ है तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। बाय अ शेयर होल्डर आल्सो इन अमलगमेशन डीमर्जर आल्सो। इसके ज्यादा मैं एग्जांपल नहीं दूंगी। आई होप आप सब समझ रहे हैं कि अमलगमेशन हुआ, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स थे, वो कंपनी अमलगमेट हो गई किसी दूसरी कंपनी के साथ या उसका डीमर्जर हो गया, तो वो शेयर्स मुझे, मेरे से वो वाले शेयर्स ले लिए गए, नई कंपनी के शेयर्स दे दिए गए, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना। चलिए, ये तो हो गया ट्रांसफर का मीनिंग। अब आते हैं कैपिटल एसेट। व्हाट इज अ कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट का मीनिंग क्या है? प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 2 क्लॉज 14 में इसकी डेफिनेशन है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by an assessee whether or not connected with his business or profession. Any security is held by a foreign institutional investor which has invested in such securities in accordance with the regulations made under the SEBI Act 1992. बट डज नॉट इंक्लूड, ध्यान से देखिएगा, इसमें कैपिटल एसेट के मीनिंग में ही लिखा है कि इट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन द सिक्योरिटीज रेफर्ड टू इन सब क्लॉज बी, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब वो शेयर्स जो आपने अपने स्टॉक इन ट्रेड के लिए रखे हुए हैं, बिजनेस के लिए रखे हुए हैं, उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। Personal effects, that is to say movable property including wearing apparel and furniture held for personal use by the assessee or any member of his family dependent on him but excludes, ये वाले पर्सनल इफेक्ट्स को कैपिटल एसेट माना जाता है। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कनेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि आज हम सिर्फ शेयर्स की बात मेनली करेंगे। एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी टू विच एग्जेम्पशन अंडर Section 10(10)(d) does not apply on account of applicability of 4th and 5th proviso. ज्वेलरी में कुछ वो दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन दी है कि कौन सी ज्वेलरी मानी जाएगी। ये भी मैं ज्यादा नहीं पढ़ रही हूँ, आई होप। ये तो फिर एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन है, इसमें भी मैं ज्यादा नहीं जा रही हूँ। जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द डेलिब्रेशन ये इसमें डाल दिया गया है क्योंकि सेक्शन एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन देता है।
फिर कभी जब रियल एस्टेट की बात करेंगे तब इसको डिटेल में करेंगे। चलिए, उसके बाद 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, और इसमें क्लेरिफिकेशन है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज hereby clarified that property includes and shall be deemed to have always included any rights in or in relation to an Indian company including rights of management or control or any other right whatsoever. अब आते हैं टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी। मेरे पास शेयर्स हैं जिनको मैंने एज एन इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, मेरे ट्रांसफर की डेफिनेशन में आते हैं। जब मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं सेल ही लेकर चलती हूँ, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन या लॉस कैसे हो। सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग, जैसे हम सबको पता है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि कैपिटल गेन दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शेयर्स के केसेस में हाउ टू डिसाइड वेदर आई हैव अर्न शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन शेयर ट्रांजैक्शंस इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। ध्यान से देखिएगा, अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर more than 24 months is treated as long term। अगर 24 महीने से कम आपने रखी है तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, और 24 महीने से ज्यादा रखी है तो वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। एंड फॉर लिस्टेड शेयर्स इट इज 12 months। लिस्टेड शेयर्स अगर आपके हैं वो अगर आपने 12 महीने से कम रखे हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा या लॉस माना जाएगा, और अगर 12 महीने से ज्यादा रखे हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। अब ये 12 महीने या 24 महीने कैसे कैलकुलेट करने हैं, वैसे तो हमें आता है कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी। इवन द डेट ऑन विच यू ट्रांसफर अ शेयर, दैट डे हैज आल्सो टू बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग। सपोज मैंने कोई शेयर मुझे मिला या मैंने लिया 12 फरवरी को, और अगले साल मैंने उसको 11 फरवरी को बेच दिया। सुनने में तो ये लगता है ना कि पूरा एक साल हो गया, बट इट इज नॉट मोर देन, इट इज लेस देन 1 ईयर, क्योंकि एक दिन को अगर हाफ अ डे भी है, पार्ट ऑफ द डे भी है, तो फुल डे कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरह से हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालनी है। In certain circumstances, period of holding of the previous owner has to be taken into consideration। ये भी हमें सबको पता है। अगर मुझे पार्टीशन में मिला है, शेयर्स मिले हैं जो मैं अभी पहले आपको बता रही थी, गिफ्ट में मिला है, इनहेरिटेंस में मिला है, अमलगमेशन में मिला है, डीमर्जर में मिला है, इस तरह से अगर मुझे मिला है जब इसको ट्रांसफर नहीं माना गया था, तो उस केस में जब हम पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो ना सिर्फ मेरी पीरियड ऑफ होल्डिंग जितने दिन मैंने शेयर्स को रखा है, बल्कि जो मेरा जो प्रीवियस ओनर था उसने भी जितने दिन उस शेयर्स को अपने पास रखा है वो भी कैलकुलेट करी जाएगी। दोनों की मिलाकर अगर 12 महीने से ज्यादा है तो वो लिस्टेड शेयर्स में तो वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। अब देखिए, इसमें एक सवाल अक्सर आ जाता है कि मान लीजिए, एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट करे कुछ शेयर्स, मेरे पास 6 महीने रहे और मेरे फादर के पास वो 1 साल रहे, डेफिनेटली 1-1.5 साल हो गया। लेकिन सपोज मेरे फादर ने भी वो शेयर्स खरीदे नहीं थे, उनको भी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उनको भी किसी गिफ्ट में, विल में या पार्टीशन के टाइम पर मिले थे, तो कितनी पीरियड ऑफ होल्डिंग मानी जाएगी? पीरियड ऑफ होल्डिंग मानी जाएगी जो मैंने होल्ड किए, जो प्रीवियस ओनर ने होल्ड किए, और ये पीछे तक चला जाएगा, सारे ओनर्स का की होल्डिंग ऐड होती जाएगी जब तक किसी ओनर ने उसको बकायदा खरीदा नहीं होगा। सपोज मेरे फादर को विल में मिली, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर से, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने उसको खरीदा था, तो मैं जब उसको सेल करूंगी तो मेरे ग्रैंडफादर तक की पीरियड ऑफ होल्डिंग मानी जाएगी टू कैलकुलेट वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म। चलिए, अब आता है मोड ऑफ कंप्यूटेशन। ये सेक्शन 48 में दिया है। इट इज वेरी सिंपल, जो कहता है द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स shall be computed by deducting from the full value of consideration received or accruing as a result of the transfer of the capital asset the following amounts। भाई, जो मुझे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिला है, जब मैंने उसको बेचा है या मैंने उसको ट्रांसफर करा है, तो जो पैसा मुझे मिला है उसमें से एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर घटा दीजिए। फिर मुझे कुछ ब्रोकरेज देनी पड़ गई या कुछ और मेरा खर्चा हो गया तो वो खर्चा घटा दीजिए।
ये गुप्ता जी, someone is saying unable to hear. Hello. नहीं मैडम, it is, you are clearly audible, there is no issue. Someone was saying the cost of acquisition of the asset and the cost of any improvement there. ये बड़ा सिंपल सी बात है, जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं बेचते हैं, जब बेचते हैं तो जितने का मैंने खरीदा होता है, मैं उसका जो डिफरेंस होता है उसको कहती हूँ ये मेरा प्रॉफिट हो गया या ये मेरी इनकम हो गई। ऐसा ही कैपिटल गेन में है, लेकिन बेचते वक्त, ट्रांसफर के वक्त कोई अगर मेरा खर्चा हुआ है तो वो मुझे मिलेगा, वो ट्रांसफर जो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसमें से लेस कर दी जाएगी। और अगर जितने पीरियड मैंने उस शेयर को रखा या किसी भी चीज को, प्रॉपर्टी को रखा, तो उसमें अगर मैंने कुछ इंप्रूवमेंट करी थी तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। चलिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ a long-term capital asset other than capital gain arising to a non-resident from the transfer of shares in or debentures of an Indian company referred in the first proviso, the provision of clause 2 shall have effect as if for the words cost of acquisition, cost of any improvement, the words indexed cost of acquisition and indexed cost of any improvement had respectively been substituted। ये हम सबको पता है कि जो शेयर्स या कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपकी पुरानी होती है तो उसकी कॉस्ट निकालते वक्त उसको इंडेक्सेशन कर दिया जाता है कि भाई तब अगर मैंने 50 साल पहले कोई प्रॉपर्टी 10,000 रुपए की खरीदी थी तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू आज की डेट में 10,000 की थोड़ी होगी, तो वो एक जो इंडेक्स वैल्यू आती है उससे उसको इंडेक्सेशन कर दी जाती है। लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा, नॉन रेजिडेंट के केस में अगर वो किसी इंडियन कंपनी के शेयर या डिबेंचर को बेचता है तो उसको ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंडेक्सेशन नहीं मिलती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे तक याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे उस टाइम भी इसकी अहमियत होती है। नॉन रेजिडेंट को इंडेक्सेशन नहीं मिलती। इम्प्लीकेशन ये आई कि नॉन रेजिडेंट आर गिवन बेनिफिट ऑफ, हाँ, नॉन रेजिडेंट को फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का बेनिफिट मिल जाता है। वो तो डीटी बाइंग रेट और डीटी सेलिंग रेट करके उसको दे दिया जाता है, लेकिन उसको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं मिलता। अब ये इंडेक्स कॉस्ट का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मीनिंग है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का मीनिंग है। ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये हम सबको पता है कि किसी साल में कितना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था और आज की डेट में कितना है, उसको हमें प्रोपोर्शन करना होता है। चलिए, अब आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हमने निकाल लिया, उसकी अगर इंडेक्सेशन बनती थी तो वो भी हमने निकाल लिया। हमें सबको पता है कि इंडेक्सेशन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलती। तो शेयर्स में अगर आपके अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं जो आपने 24 महीने से कम रखे हैं अपने पास, तो उसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी। 24 महीने से ज्यादा रखे हैं तो मिल जाएगी। ऐसे ही लिस्टेड शेयर्स में अगर आपने 12 महीने से कम रखे हैं तो नहीं मिलेगी, 12 महीने से ज्यादा रखे हैं तो मिल जाएगी। दिस इज टू बेसिक, सबको पता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो मैंने कहा था कि जितने पैसे मुझे मिले ट्रांसफर के वक्त, मुझे कुछ पैसे मिले और उसमें से जो खर्चे वो मैंने लेस कर दिए, इतना ही है, सिर्फ इतना ही है। लेकिन एक सेक्शन 50 CAA है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अदर देन कोटेड शेयर्स। प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि ये कोटेड शेयर्स की या लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की बात नहीं कर रहा है। ये दूसरी जो कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज, छोटी कंपनीज जिनका स्टॉक एक्सचेंज में शेयर कोटेड नहीं होता है, ये सिर्फ उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और जो मैं शुरू में बता रही थी कि शेयर्स आपने ट्रेडिंग के लिए रखे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेरे पास कई बार ऐसा क्वेश्चन आया कि रखे तो करते तो बिजनेस है, फिर कहते हैं मैडम 50 CA लगेगा। नहीं, अगर आपने बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड रखे हैं तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मैं जितने भी सेक्शंस पढ़ रही हूँ ये सारे कैपिटल गेन की बात करते हैं, सिर्फ उस सिनेरियो की बात करते हैं जब आपने शेयर्स को एज एन इन्वेस्टमेंट रखा हो। तो 50 CA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको पढ़ते हैं। 50 CA कहता है वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड or accruing as a result of the transfer by an assessee of a capital asset being shares of a company other than a quoted shares। ऊपर भी लिखा है इन्होंने, quoted shares नहीं होते, यहाँ भी लिखा है is less than the fair market value of such share determined in such manner as may be prescribed
The value so determined shall, for the purpose of section 48, be deemed to be the full value of consideration received or accruing as a result of such transaction. आपको पता होगा प्रॉपर्टी के केसेस में, रियल एस्टेट में भी इस तरह का एक प्रोविजन है 50C में, शेयर्स के लिए 50CA में है, एग्जैक्टली सेम है। इनका ये कहना है कि अगर आपने कोई शेयर्स बेचे किसी साल में जो कोटेड शेयर्स नहीं है, जो किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स नहीं है, तो अगर आपने उसको फेयर मार्केट वैल्यू से कम में बेचा तो फेयर मार्केट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में। अब फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, उसकी तो पूरा प्रोसीजर दे रखा है इनकम टैक्स रूल्स में, रूल 11A और 11A1, 11A2, 11UA1 एंड UA2, उसको पढ़ लेंगे। उसमें क्या होता है कि क्योंकि कोटेड नहीं है, लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो जो प्राइवेट कंपनी है या जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, तो उस कंपनी की बैलेंस शीट लेकर जिस डेट को ट्रांसफर हुआ, बैलेंस शीट लेकर उसका एक एक एसेट फेयर मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाएगा, इंक्लूडिंग शेयर्स एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन होती है उस पर कैलकुलेट किया जाएगा, फिर उसमें से लायबिलिटीज लेस करी जाएंगी, उसकी जो वर्थ आएगी उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाएगा और इस तरह से उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी। Provided that the provision of this section shall not apply to any consideration received or accruing as a result of transfer by such person, subject to such conditions as may be prescribed. अब there may be certain circumstances जिसमें इसकी जरूरत नहीं है, वो अगर गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। For the purpose of this section, quoted shares means the shares quoted on any recognized stock exchange with regularity from time to time, where the quotation of such share is based on current transaction made in the ordinary course of business. स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोटेड है तो कोटेड माना जाएगा। एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जरूरी नहीं है कि NSE में भी हो, BSE में भी हो, किसी एक में भी अगर है तो वो माना जाएगा। दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन अनकोटेड शेयर्स। ऐसा ही एक और प्रोविजन है 50D में, जो फेयर मार्केट वैल्यू डीम टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन सर्टेन केसेस बताता है, where the consideration received or accruing as a result of the transfer of a capital asset by an assessee is not ascertainable. किसी वजह से अगर फेयर मार्केट वैल्यू आपको पता ही नहीं चलती है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन cannot be determined, then for the purpose of computing income chargeable to tax as capital gains, the fair market value of the said asset on the date of transfer should be deemed the full value of consideration. पहले ऐसा होता था कि जिन शेयर्स को जिस भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते वक्त अगर उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं निकलती थी, देयर वर जजमेंट्स कि इसके ऊपर तो टैक्स ही नहीं लगेगा, ये तो कैपिटल गेन ही नहीं माना जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको प्लग इन करने के लिए ये सेक्शन आया था। इन्होंने कहा कि अगर नहीं पता चल सकता ना, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस दिन की ट्रांसफर की, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। अब आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैसे तो हमें पता है, जितने में मैंने खरीदा, या जैसे मैंने बताया था कि मेरे को अगर विल में या मुझे इनहेरिटेंस में या पार्टीशन में मिला है तो मेरे से पहले वाले ओनर ने जब जितने में खरीदा वो वाली कॉस्ट मानी जाती है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन है सेक्शन 55(2)(AC) में। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि अभी पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, वो सारा रिदम टूट जाएगा। For shares acquired before 1st of February 2018, जो शेयर्स आपने 1st of February 2018 से पहले खरीदे उनके लिए कुछ अलग से प्रोविजन है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए नहीं कैलकुलेट करता है, बल्कि कुछ और मैकेनिज्म इन्होंने दे रखा है। और दूसरी एक्सेप्शन है सेक्शन 49(2) में, जो केसेस ऑफ 56(2)(10) की बात करता है। देखिए, जैसे अभी हमने पढ़ा था 50CA, जिसमें मैंने कहा कि अगर आपने फेयर मार्केट जो अनकोटेड शेयर्स हैं उनको अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम में बेच दिया तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। अब इस केस में ध्यान दीजिएगा, बायर के हाथ में भी टैक्सेबिलिटी आती है। नॉर्मली जब बायर कोई भी खरीदता है किसी चीज को तो उसके हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि उसको कोई प्रॉफिट गेन तो होता नहीं। जब जो बेचता है उसको होता है तो उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी आती है। लेकिन अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम में आपने खरीद लिया है तो उस केस में जो डिफरेंस है
जितने का आपने खरीदा है और जितनी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाती है अंडर सेक्शन 56 to 10। ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा ड्रैकोनियन प्रोविजन है लेकिन है। इसी तरह का प्रोविजन 50C के कॉरस्पॉन्डिंग भी 56 to 10 में आता है। लेकिन अब मैंने क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू से कम में खरीद लिया, वो जो डिफरेंस था वो मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया गया। लेकिन उसको जब मैं अल्टीमेटली सेल करूंगी, बाद में मैं कभी उसको सेल करती हूँ या ट्रांसफर करती हूँ, तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये मानी जाएगी जो आज की मेरी फेयर मार्केट वैल्यू। एंड वेरी लॉजिकली एंड वेरी प्रैक्टिकली एंड वेरी फेयरली ये तो होना ही चाहिए। जब मेरे से अभी टैक्स ले लिया तो दोबारा थोड़ी लेंगे। ऐसे ही एक है 49(9) में जो केसेस की बात करता है, सेक्शन 28(6)(a) की। जैसे आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, आपके पास कोई आपका स्टॉक इन ट्रेड है, कुछ शेयर्स। अब जैसे मैंने कहा था, 2 पोर्टफोलियो तो रख ही सकते हैं। तो किसी दिन आप ये डिसाइड करते हैं, आपके पास 2 पोर्टफोलियो के, आप जो इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स हैं उनको स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर करते हैं। तो जिस दिन आप, क्योंकि ये तो ट्रांसफर है, हम ट्रांसफर की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, तो जब आप कन्वर्जन करते हैं, उसके जो नेचर का है वो कन्वर्जन अगर आप करते हैं तो वो ट्रांसफर माना जाता है। तो इस केस में जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करती हूँ, तो उस दिन, जिस दिन मैं ये कन्वर्जन करती हूँ, उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है उन शेयर्स की, वो मेरी बिजनेस इनकम मानी जाती है। लेकिन जब अल्टीमेटली बिजनेस में मैं उसको सेल करती हूँ तो वो कॉस्ट मेरी वो मानी जाती है जो आज की फेयर मार्केट वैल्यू, राइटली सो। इसी तरह का एक प्रोविजन सेक्शन 45(2) में जो इनवर्स बात करता है, रिवर्स सिचुएशन बताता है कि अगर मेरे पास कुछ शेयर्स हैं जो मैंने स्टॉक इन ट्रेड रखे हुए हैं और उसको मैं किसी दिन ये डिसाइड करती हूँ कि इसको मैं इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो उसमें टैक्सेबिलिटी तो उस दिन नहीं आती। टैक्सेबिलिटी तभी आती है जब आप उसको अल्टीमेटली बेचते हो। लेकिन जिस दिन आपने उसका कन्वर्जन किया, उस दिन आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी जब आप उसको सेल करेंगे। तो यहाँ थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। चलिए अब बात करते हैं इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन वैसे तो हमें पता है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से हम उसको प्रोपोर्शन कर देते हैं, उसको हम बढ़ा देते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर होता है, ये हमें पता है। फ्रॉम 1st of April 2001 if acquired earlier than this date। देखिए, अगर आपने कोई एसेट 1st of April 2001 से पहले एक्वायर किया है, आपने किया है, या अगर आपको विल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस वगैरह में मिला है, तो वो पहले वाले जो ओनर है उसने किया है पहले। अगर उन्होंने भी इसी तरह की किसी सिचुएशन में लिया है तो उससे पहले वाला ओनर, जो भी ओनर जिसने फर्स्ट टाइम इसको खरीदा था, वो अगर 1st of April 2001 से पहले है, तो इस केस में आप 1st of April 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उसको वहां से इंडेक्स कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केसेस में। शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन मिलता ही नहीं, वो हम सबको पता है। नो इंडेक्सेशन ऑन लिस्टेड शेयर्स सोल्ड थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान दीजिएगा, जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं उनमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है ना, वो तो वैसे ही फेयर मार्केट वैल्यू पर होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपने बेचे तो उसको इंडेक्सेशन नहीं मिलता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। नो इंडेक्सेशन ऑन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में भी कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलता। नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर वो इंडियन कंपनी के शेयर कुछ बेचते हैं तो उनको इंडेक्सेशन नहीं मिलता। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होता है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए नहीं मिलता, लेकिन उनको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का बेनिफिट मिल जाता है। चलिए, नॉट इन केसेस ऑफ 112(a), ये जब हम टैक्सेशन पढ़ेंगे, हाउ टू कंप्यूट टैक्स ऑन शेयर ट्रांजैक्शंस, वहां पर 112(a) आएगा, तब देखेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी छेड़ दूंगी तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। चलिए, इंडेक्सेशन हो गया। टैक्सेबिलिटी इन प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर, ये हम सबको पता है, जिस साल में आपने ट्रांसफर किया है, वो सेल, एक्सचेंज जो भी जिस साल में हुआ है उस साल में आपको टैक्स लगेगा। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है,
45(2) में, जो मैं अभी पहले भी बात करके चुकी हूँ, अगर आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको, ये थोड़ा गलत लिख दिया, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, तो जिस टाइम आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो ट्रांसफर जरूर है, लेकिन टैक्सेबिलिटी उसकी उस साल में नहीं लगती। जब आप उसको अल्टीमेटली सेल करते हैं तब वो टैक्सेबिलिटी आती है। चलिए, एग्जेम्पशन हम सबको पता है 54 से 54H में मिलती हैं, लेकिन शेयर ट्रांजैक्शन के लिए जब आपने शेयर सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जेम्पशन मिलती है 54F की। अगर आपने शेयर्स बेचकर कोई एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली या कंस्ट्रक्ट कर ली, तो जितना आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया आउट ऑफ कैपिटल गेन वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। 54EC पहले मिलता था, अब वो भी नहीं। तो शेयर्स के केसेस में सिर्फ 54F मिलता है, बाकी कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं। चलिए, अब कन्वर्जन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक इन ट्रेड, इसमें सेक्शन 45(2) लगता है। इसमें जिस टाइम आप कन्वर्ट करते हैं इसको स्टॉक इन ट्रेड में अपनी इन्वेस्टमेंट को, उस टाइम कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स डेफर हो जाता है तभी लगेगा जब आप अपना स्टॉक इन ट्रेड बेचेंगे। लेकिन कैसे लगेगा? टिल द पीरियड ऑफ कन्वर्जन आपका वो कैपिटल गेन माना जाएगा, उसमें सारे वही प्रोविजंस लगेंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो भी पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड ऑल। और फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की जो है वो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। और बिजनेस इनकम में जब आपने सेल करा है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को उसकी कॉस्ट मानकर बिजनेस इनकम बन जाएगी। स्टॉक इन, अब उल्टा अगर करते हैं, स्टॉक इन ट्रेड को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो जब स्टॉक इन ट्रेड को आपने इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया तो आपका सेक्शन 28(6)A लग जाता है। उसी दिन आपके ऊपर टैक्स लग जाता है। अब आता है मेन पॉइंट, जिसके ऊपर शायद मैं बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाली हूँ। देखिए, ये मेरी टीम ने एक चार्ट बनाने की कोशिश करी है, किस तरह से इक्विटी शेयर्स के टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स। जो मैंने शुरू में भी बोला था कि आप ये तो निकाल लेते हो कि आपको कैपिटल गेन कितना हुआ, लॉन्ग टर्म हुआ, शॉर्ट टर्म हुआ, ये सब तो आप निकाल लेते हो, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा। नॉर्मली तो क्या होता है, अगर हमने एक हेड में कोई इनकम निकाली तो हम उसको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड कर देते हैं और बाद में जो भी डिडक्शन लेनी होती है ले लेते हैं। उसके बाद जो भी टोटल इनकम आती है उसके ऊपर हम अपना टैक्स जो भी रेट होते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर्स के केसेस में या यूं कहूं कैपिटल गेन्स के केसेस में कुछ फर्क है। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 111A, सेक्शन 111A, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 112A, जिसमें ये टैक्सेबिलिटी आती है। देखिए, इसको वैसे मैं कई तरह से समझाने वाली हूँ, लेकिन ये क्योंकि मेरी टीम ने बना कर दिया तो पहले मैं इसको जल्दी से बता देती हूँ आपको, फिर इसी को मैं दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि अभी पीछे तो जो हमने पढ़ा वो दैट वाज टू जनरल, हम सबको आता है, हम यहाँ आकर कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके शेयर्स लिस्टेड हैं या अनलिस्टेड। मैं अनलिस्टेड शेयर्स की पहले बात करूंगी, जो मेरी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पर अनलिस्टेड शेयर्स हैं। तो अगर आपने 24 महीने से कम रखे होंगे तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, और 24 महीने से ज्यादा रखे होंगे तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। अब सपोज आपने अनलिस्टेड शेयर्स बेचे जिससे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, 24 महीने से कम में आपने बेच दिया, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, जैसे नॉर्मल प्रोविजंस लगते हैं वैसे ही लगेगा। इनकम में ऐड हो जाएगा, जो भी आपका स्लैब रेट आता है या कंपनी है तो जो भी कंपनी का रेट है वो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, उसमें ज्यादा मारामारी करने की जरूरत नहीं। अब अनलिस्टेड शेयर्स पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब आपने 24 महीने से ज्यादा वो शेयर्स रखे, तो आपको क्या करना। देखिए, मैं आपको अभी बाद में इसको थोड़ा सा पलट के सेक्शन वाइज भी समझाऊंगी, क्योंकि इसको समझने के कई तरीके हैं। कई बार हमें ऐसे समझ में आ जाता है, कभी कभी हम सेक्शन वाइज पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। चलिए, अनलिस्टेड शेयर्स में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, इस केस में आपको सेक्शन 112 लगता है
और उसमें आपको 20% का टैक्स देना, ठीक है। अनलिस्टेड शेयर्स, क्योंकि लिस्टेड है ही नहीं, अनलिस्टेड है, लॉन्ग टर्म होता है, तो आप 112 में आ जाइए और 20% का टैक्स दे दीजिए। अब लिस्टेड पे आते हैं, यहाँ थोड़ी ज्यादा मारा मारी है। लिस्टेड शेयर्स आपके स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो बिकते हैं, जिन पर एसटीटी लगता है, लिस्टेड शेयर्स हैं, वो आपने बेचे और उस आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी आपने 12 महीने से कम रखे, 12 महीने से ज्यादा नहीं रखे, 12 महीने तक। चलिए, अगर आपने उसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा, लिस्टेड है तो डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड भी होंगे, एसटीटी पेएबल भी होगा। लेकिन देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको ऑफ मार्केट बेच दें, लेकिन अगर आपको लिस्टेड शेयर्स में कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ जो आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा था, एसटीटी पे किया था, तो आपको 111A 111A सेक्शन लगेगा और आपका उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आपने कोई लिस्टेड शेयर जिसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, लेकिन आपने उसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचा, आप वैसे ही चले गए, आपने ऑफ मार्केट किसी को दे दिए, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचा, एसटीटी भी पे नहीं किया, तो उस केस में नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे। आप अपने नॉर्मल रूटीन में जैसे इनकम होता है उसमें ऐड कर लीजिए और जो भी आपका टैक्स रेट बनता है वो दे दीजिए। चलिए, अब आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स। अब देखिए, लिस्टेड शेयर है जो आपने डेफिनेटली 12 महीने से ज्यादा रखा होगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब इसको या तो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचेंगे या फिर आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचेंगे, ऑफ मार्केट बेचेंगे। अगर आपने इसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा है और एसटीटी पे किया है तो आपको सेक्शन 112A लगेगा, 112A 112A। और इस केस में 1 लाख को छोड़कर जितने आपको कैपिटल गेन हुआ उसमें से 1 लाख एग्जेम्प्ट है, बाकी के ऊपर 10% आपका टैक्स लगता है। ये टैक्स रेट की बात कर रही हूँ मैं, प्लीज ध्यान दीजिए। अब अगर कोई लिस्टेड शेयर है जिसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, जिसको आपने ऑफ मार्केट बेचा है, देखिए लिस्टेड शेयर है तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच सकते हैं, लेकिन आपने उसको ऑफ मार्केट बेचा, तो उस केस में आपको सेक्शन 112A नहीं लगेगा, आपको सेक्शन 112 में आना, और सेक्शन 112 में आकर आपको जैसे मैंने पहले बोला था कि इंडेक्सेशन वाले बहुत सारे इश्यूज हैं कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने ये भी कहा था कि लिस्टेड शेयर्स में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता, लेकिन अगर लिस्टेड शेयर आपने ऑफ मार्केट बेचे हैं तो आप इंडेक्सेशन भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका इंडेक्सेशन के बाद जो टैक्स है वो 20% लगेगा और इंडेक्सेशन के साथ आपका टैक्स 10% लगेगा। दोनों में से जो भी आपको बेनिफिशियल लगता है आपको टैक्स लगेगा। आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी से इश्यूज हैं। अब इसको, ये तो एक तरीका है, ये तो मेरी टीम ने बनाया है एक तरीके से, इसको सेक्शन वाइज भी समझ सकते हैं। जैसे शुरू करते हैं 111A से, 111A से 111A। ये बात करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई सा भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो वो इसी में आ सकता है, बाकी किसी में नहीं आ सकता, क्योंकि 112 और 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात। अब 111A ये कहता है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ किसी लिस्टेड शेयर पर जिसको आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा, ध्यान दीजिएगा, लिस्टेड होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होना चाहिए, तो आप इस सेक्शन में आ जाते हो, सेक्शन 111A में, 111A में, जहां पर आपको 15% टैक्स लगता है, एज सिंपल एज दैट। अब क्योंकि मैंने कहा कि 112 ये तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो शॉर्ट टर्म सारे लिस्टेड शेयर्स के ही थोड़ी होंगे जो मैंने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे, तो जो अनलिस्टेड शेयर्स बच गए, अगर कोई अनलिस्टेड शेयर्स मैंने बेचे जिसके ऊपर मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो वो नॉर्मल प्रोविजंस में चला जाएगा। जैसे मैंने पहले, इसको इनकम में आप ऐड कर लीजिए अपनी, जो भी आपके ऊपर स्लैब रेट वगैरह लगते हैं वो लगा लीजिए, उसके ऊपर टैक्स दे दीजिए। और एक एक्सेप्शन और आ जाती है, क्योंकि इसमें 111A में आपको दो कंडीशंस देखनी है,
शेयर लिस्टेड हो और उसकी जो ट्रांसफर है वो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज हो, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो लेकिन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब मैंने कोई लिस्टेड शेयर बेचा जिसके ऊपर मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होना है, मतलब उसको मैंने 12 महीने से ज्यादा नहीं रखा, 12 महीने तक, और लेकिन मैंने उसको ऑफ मार्केट बेचा, तो वो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचा, तो उस केस में आप नॉर्मल प्रोविजंस में चले जाए। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में सिर्फ इतनी सी बात है, लिस्टेड शेयर sold through recognized stock exchange comes under section 111A, otherwise normal provision। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए दो सेक्शन है, 112 एंड 112A, 112 और 112A। 112A बात करता है लिस्टेड शेयर्स सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, long term capital gain on listed shares sold through stock exchange। देखिए ये तीन कंडीशंस हैं 112A के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, लिस्टेड शेयर्स हो, और वो उनकी सेल जो है वो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज हुई। मैं 112A पहले क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 112 कहता है कि मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाऊंगा उन सारे शेयर्स पे जो 112A में नहीं आते। तो आप शायद समझ रहे हैं मेरी बात कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसमें ये तीन कंडीशन फुलफिल नहीं होती, लिस्टेड शेयर है और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा भी गया है, खरीदा भी गया है। सॉरी मैं पहले दोनों बातें नहीं बोली कि आपने बेचा भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू है, एसटीटी पे करके, आपने खरीदा भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो आप 112A में आते हैं। तो ये वाले शेयर्स निकाल के बाकी सारे शेयर्स पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 112 में आते हैं, 112 में। अब 112 में जो टैक्स रेट दिया है वो 20% दिया है। अब जरा दिमाग लगाइए कि कौन कौन से शेयर्स हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अनलिस्टेड शेयर्स, क्योंकि 112 ये तो लिस्टेड की बात कर रहा है, उसमें नहीं आएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स वो 112 में आएगी, उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा 20%, ठीक है। अभी इन सेक्शन में कुछ और इंट्रिकेसीज में उसको मैं बाद में पढ़ूंगी, पहले ये समझने उसकी वो तो आसान है, इतनी कोई बड़ी मारामारी नहीं है। तो वो वाले 112 में आ जाएंगे क्योंकि 112 एक ही कंडीशन फुलफिल नहीं करते, अनलिस्टेड शेयर्स। अब एक चीज और सुनिए, अगर मैंने कहा लिस्टेड शेयर्स सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, अब लिस्टेड शेयर है लेकिन मैंने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचे हैं, तब भी आप 112 में आ जाएंगे, क्योंकि 112 कहता है 112A वाले सारे हटा दो, बाकी इसमें आ जाओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो लिस्टेड शेयर्स मैंने ऑफ मार्केट बेच दिए उनके ऊपर 112 लगेगा, लेकिन उसमें रेट 20% नहीं है, क्योंकि ये लिस्टेड शेयर्स हैं। तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिया गया है, उसमें कहा गया है या तो आप 10% टैक्स विद इंडेक्सेशन दे दो, क्योंकि लिस्टेड शेयर में वैसे इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपने ऑफ मार्केट बेचे हैं तो उन्होंने कहा भाई आप या तो इंडेक्सेशन के साथ 10% दे दो या इंडेक्सेशन लेकर 20% दे दो, जो भी आपको बेनिफिट करता है वो आप दो। तो अगर लिस्टेड शेयर्स आपको ऑफ मार्केट बेचने हैं तो ध्यान रखिएगा उस पर आप इंडेक्सेशन भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसके ऊपर इंडेक्सेशन लेने के बाद 20% टैक्स देते हैं और वो 10% विदाउट इंडेक्सेशन से कम आपका बनता है। तो प्लीज ये ध्यान रखिए। अब 112A की बात करते हैं। 112A ये कहता है 112A, वो ये कहता है कि मैं लिस्टेड शेयर्स की बात कर रहा हूँ जिनकी सेल और परचेज दोनों आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करी। लिस्टेड शेयर्स परचेज एंड सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये कंडीशंस हैं उसमें। तो आपने बेच दिए, ट्रांसफर कर दिए, तो अब उसके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा? उस पर उन्होंने बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दिया कि 1 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, उसके बाद जितना बचता है उसके ऊपर आप 10% टैक्स लगेगा, एज सिंपल एज दैट। मुझे नहीं पता कि मैं कितना क्लैरिफाई कर पाई हूँ, लेकिन मैं इसको 2 तरह से समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से बोलना चाहूंगी। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिर्फ सेक्शन 111 में आता है, 111A में आता है, 111A 111A।
तो जब भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आप सिर्फ 111A, और लॉन्ग टर्म है तो 112 या 112A। 112 उन केसेस को कैटर करता है जो 112A में नहीं आते। आप देख लीजिए पहले कि आप 112 में आते हो, 12A में आते हो, अगर नहीं आते तो सीधे 112 में आ जाओ अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। शॉर्ट टर्म हमेशा 111 में ही रहेगा, लेकिन वो बड़ा सिंपल सा सेक्शन है। वो ये कहता है कि आप 20% टैक्स दे दो अगर आपके लिस्टेड शेयर्स हैं जिसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जिसको आपने थ्रू स्टॉक एक्सचेंज बेचा है, एज सिंपल एज दैट। तो जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं और या फिर लिस्टेड शेयर्स हैं जो आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचे, वो नॉर्मल रेट में चले जाओ, नॉर्मल इनकम में, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 112 और 112A में आना पड़ेगा। 112A में वो शेयर्स आते हैं जो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स होते हैं, जब आपने बेचे और जब आपने खरीदे तो आपने STT पे किया, मतलब थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आपने खरीदे और बेचे, सिर्फ वो शेयर्स आते हैं 112A में। तो इसके अलावा जितने भी शेयर्स हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होता है तो आप 112 में आ जाइए, सिंपल 112 में आ जाइए, 112 में। 112 ये कहता है कि आप 15% टैक्स दे दो भैया, अगर 15 गलत बोल गई शायद मैं, 20%, सॉरी 15 तो 111A में था, सॉरी। तो 20% आप टैक्स दे दो। तो अब कौन कौन से शेयर्स हुए, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हुए या लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो आपने ऑफ मार्केट बेचे। ऑफ मार्केट अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर बेचे हैं तो उसमें आपको ऑप्शन दिया गया है 10% विद इंडेक्सेशन, 20% विदाउट इंडेक्सेशन, जो आपको बेनिफिशियल लगता है आप दे दीजिए। और अगर आप 112A में आते हैं तो आपको टैक्स लगेगा 1 लाख को छोड़ दो, बाकी सब पर 10% टैक्स लगेगा। आई थिंक मैंने 2-3 तरह से इसको समझाने की कोशिश करी है। आप इसको याद रखने के लिए, समझने के लिए, याद रखने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सेक्शंस को पढ़िए। छोटे छोटे सेक्शंस हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, और उसको जैसे ना अपने आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या कह रहा है। और ये पीपीटी मैं भारद्वाज जी से शेयर कर लूंगी, इसमें एक अच्छा सा बना हुआ है। बहुत अच्छी तरह समझा रहे हो मैडम, आप बहुत ही अच्छी तरह समझा रहे हो। आप बिल्कुल ऐसा समझा रहे हो स्टूडेंट्स की तरह, बहुत ही अच्छा। आपने चार्ट भी बहुत अच्छा बनाया है। हाँ जी, हाँ जी। I'm too used to teaching like this, क्योंकि मेरे ऑफिस में जो यंग बच्चे हैं वो अक्सर आकर बैठ जाते हैं, तो हम इसी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अजय मुझे और कुछ कोई तरीका नहीं आता समझाने का, नहीं, और बहुत मुझे अच्छा है, बहुत बहुत अच्छे अच्छा। से पता है कि इसमें कुछ कंफ्यूजन्स हैं, क्योंकि मेरे पास हाँ जी, अक्सर हाँ जी। क्वेरीज आती हैं इसमें। तो हाँ, इसलिए बिल्कुल हम ठीक। कोशिश कर रही हूँ इसको 2-3 तरीके से समझाने की, तो हाँ प्लीज ये जी, हाँ ध्यान जी, हाँ रखें। जी, हाँ जी। अब आगे आती है कुछ एंट्री केसेस जो इन सेक्शंस में हैं। वो तो ठीक था, टैक्स वैक्स तो हमने पढ़ लिया, कौन से केस में कौन सा सेक्शन लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे पहले 111A की बात करते हैं, जो मैंने कहा था, अगर आपने STT पे कर किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो हैं अगर आपने बेचे हैं थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके ऊपर आपको 15% टैक्स लगेगा। ये 111A कहता है। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं या लिस्टेड शेयर्स जिनको आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचा है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो वो नॉर्मल प्रोविजंस में चल जाए। लेकिन इसमें अगर आप 111A में टैक्स लगा रहे हैं तो कुछ और चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला तो वही ओनली STT पेड शेयर्स, दैट मींस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स और सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स नॉट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज आर चार्जेबल एट नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स। 15% का टैक्स है। अब देखिए, इंडिविजुअल HUF सेट ऑफ फॉर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इसमें आपको सेट ऑफ अलाउ है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उसी से समझ आएगा, ऐसे लिखने से समझ नहीं आएगा। सपोज मेरी कैपिटल गेन के अलावा जो मेरा यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, उसके अलावा मेरी जो इनकम है वो सपोज 1 लाख रुपए है, और मेरे पास कैपिटल गेन जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A वाला है वो समझिए 1 लाख रुपए आता है। मतलब 1 लाख मेरी अदर इनकम्स है और 1 लाख का मेरा कैपिटल गेन आता है, और मेरी मैक्सिमम इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख है। सीनियर सिटीजन के 3 लाख है और सुपर सीनियर के 5 लाख है, जो भी है।
तो आप ऐसा नहीं है कि ये जो 1 लाख का कैपिटल गेन आपको हुआ है उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना ही पड़ेगा। इस 1 लाख को आप जो आपकी अदर इनकम्स है 1 लाख उसमें ट्रांसफर कर सकते। अब देखिए 1 लाख मेरी अदर इनकम थी, 1 लाख मेरा कैपिटल गेन था। जब मैं दोनों को जोड़ती हूँ तो 2 लाख आता है और मैक्सिमम चार्जेबल नॉट चार्जेबल टू टैक्स मेरी जो मिनिमम लिमिट आती है वो 2.5 लाख की आती है, तो मेरे को कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको ये 15% टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा बदलती हूँ। 1 लाख की मेरी अदर इनकम्स हैं और 1.5 लाख की मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है जो 111A में आता है। तो पहले तो मैं इस 1.5 लाख को 1 लाख में शिफ्ट करूंगी, ये मेरा आ जाता है 2,50,000 और क्योंकि 2.5 लाख तक मेरा एग्जाम्प्ट है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आई थिंक आई एम क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर मेरे पास अदर इनकम्स 1 लाख की हैं और मेरे को 2 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 111A में, तो इस 2 लाख को पहले मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी 1 लाख, तो ये टोटल मेरा बन गया 3 लाख, लेकिन मेरी 2.5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है, तो 50,000 बच गया और ये 50,000 पर मैं 15% टैक्स दूँ। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा भारी बेनिफिट है छोटे इन्वेस्टर्स के। इंडिविजुअल एचयूएफ ऐसी एचयूएफ को मिल जाएगा, उसमें सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन नहीं होते, लेकिन बाकी सब मिल जाएगा। 6A की डिडक्शन आफ्टर रिड्यूसिंग सच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 6A की जो चैप्टर 6A की डिडक्शन होती है ATC वगैरह, वो आपको सिर्फ अदर इनकम्स पर मिलेंगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर मिलेंगी। ऐसे ही 88 की जो रिबेट है वो भी आपको इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर मिलेगी। बाकी पर आप लीजिए, ऐसा कोई मना नहीं है कि आपने अगर सेक्शन 111A में आ गए तो आपको मिलेगी, लेकिन दूसरी इनकम्स पर मिलेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर नहीं। अब देखिए, ये हम जब पढ़ रहे थे तो हमें ये फील आई, इसमें सेक्शन 87A का जिक्र नहीं है। 87A में भी एक रिबेट होती है, आप सबको पता होगा। अब ये हमारे माइंड में कहाँ से आया कि 87A का इसमें जिक्र नहीं है? उसकी वजह ये थी कि 112A जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र है 87A का। 87A आपको पता होगा इंडिविजुअल के केस में अगर आपकी 5 लाख से कम की इनकम है तो आपको जो भी आपका टैक्स बनता है या 12,500 रुपए उतना ही टैक्स देना। यहाँ पर उसका मेंशन नहीं है इस सेक्शन में कि आपको नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये आपको मिलेगी। आई थिंक आई एम क्लियर। मैं फिर से वही एग्जांपल देती हूँ जो मैं पहले दे रही थी। नहीं, उनसे तो बात नहीं बनेगी। सपोज मेरी अदर इनकम 2 लाख है और मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में आता है वो 2, अदर इनकम्स मेरी 3 लाख है और मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2,50,000 आता है, तो 5,50,000 तो मेरे को 87A मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो 5 लाख से कम में मिलता है। सपोज मेरी इनकम अदर इनकम 2,50,000 है और मेरी कैपिटल गेन से इनकम जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में आती है वो मेरी 1,50,000, मेरी टोटल इनकम 4 लाख हो गई। तो आप उसके ऊपर वो रिबेट ले सकते हैं। मेरी शायद कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो रही होगी। 4 लाख का टैक्स कैलकुलेट कीजिए, वो अगर 12,500 से ज्यादा है तो आप 12,500 रुपए टैक्स दे दीजिए। तो 87A की रिबेट इस केस में मिलेगी। चलिए, तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देते हैं अनलिस्टेड शेयर्स पर या लिस्टेड शेयर्स नॉट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। जो नॉर्मल रेट पर होते हैं उनको छोड़कर बाकी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। चलिए, अब आता है 112। All long-term capital gains except those referred in section 112A। 112A में जो शेयर्स आते हैं उनको छोड़कर सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इट इंक्लूड्स ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अदर देन शेयर्स आल्सो। अगर आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी बेची है तो आप इसमें आते हैं, क्योंकि यहाँ सारे कैपिटल गेन्स की बात हो रही है। 20% इसका रेट है इन जनरल, और अगर लिस्टेड शेयर्स आपने ऑफ मार्केट बेच दिए तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, व्हिचएवर इज लोअर आप ले लीजिए जो आपको बेनिफिट मिलता है। इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 6 आफ्टर रिड्यूसिंग सच गेन, वही वाली बात है। इसमें आपको 6A की जो डिडक्शन है वो सिर्फ अदर इनकम्स पर मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। फिर रिबेट अंडर सेक्शन 88 मिलेगी। 87 का फिर से इसमें जिक्र नहीं है, तो 87 भी आपको
इसमें मिल जाएगा। चलिए मैं दोबारा से नहीं बता रही हूँ, 87A वही वाली चीज है। चलिए 112A, इसमें थोड़ी ज्यादा एंट्री केसेस हैं, इसको थोड़ा ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है, बाकी तो इजी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, इसमें यूनिट्स की भी बात होती है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। STT paid both at the time of acquisition as well as transfer. इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। एक नोटिफिकेशन है 60 of 2018 डेटेड 1st of October 2018। देखिए कुछ तो ऐसे शेयर्स होते हैं ना, जब हमें वो मिलते हैं, जब हम उसको एक्वायर करते हैं, तब STT पे होता ही नहीं है। मान लीजिए मैंने IPO में लगाए, कुछ एप्लीकेशन डाली और मुझे अलॉट हो गए, तो उसमें STT कहाँ लगता है? दैट इज नॉट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। मुझे ESOP मिलते हैं तो उसमें भी STT नहीं लगता। बोनस मिलते हैं उसमें भी STT नहीं लगता। राइट शेयर्स मिलते हैं उसमें भी STT नहीं मिलता। तो ये वाला एक नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस दी हुई है। बड़ा ही लॉजिकल है कि जिन पे लगता ही नहीं, जिन पे आप दे ही नहीं सकते STT, उन पर कैसे देंगे एक्विजिशन के टाइम? तो उनको इससे बाहर रखा गया। इस सेक्शन में लिखा है इंडिविजुअल HUF सेट ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। वो जो मैंने 111A में भी आपको बताया था कि मैं फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, इस वाले 112A वाले शेयर्स को छोड़कर मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, और 112A वाले जो शेयर्स हैं लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो मैंने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे, जिसमें मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, वो मेरा 1 लाख है। तो मैं पहले ही से 1 लाख को उस 1 लाख के साथ ट्रांसफर करूंगी। वो क्योंकि 2 लाख हुए और मेरी मिनिमम टैक्सेबल 2.5 लाख होती है, तो मेरे को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। ये सेट ऑफ अलाउ है। दूसरा एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 लाख की दूसरी इनकम है और लिस्टेड शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचने पर मुझे 1.5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो पहले इस 1.5 लाख को मैं उस 1 लाख में शिफ्ट करूंगी, वो हो गया 2.5 लाख। 2.5 लाख पर टैक्स नहीं लगता, तो आप कोई टैक्स मत दीजिए, ये वाला 10% भी मत दीजिए। और अगर इससे ज्यादा है, सपोज 1 लाख की मेरी अदर इनकम है और 3 लाख की मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तब क्या करना होगा? उस 3 लाख को पहले शिफ्ट करिए 1 लाख में, 4 लाख हो गया। 4 लाख में से 2.5 लाख हटा दीजिए क्योंकि 2.5 लाख तो आपको एग्जम्प्ट है। 1.5 लाख बच गया। 1.5 लाख में से अब ये टैक्स रेट लगा दीजिए। 1 लाख पर तो टैक्स लगेगा नहीं, 50,000 पे 10% के हिसाब से आप टैक्स लगाइए। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार हम ये मिस कर जाते हैं कि भाई ये कैपिटल गेन है, इसको तो अलग ही रख लो। नहीं, उसको उसके साथ आप शिफ्ट कर सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगी, सेक्शन पढ़िएगा, तीनों सेक्शंस पढ़िएगा। छोटे छोटे सेक्शंस हैं, बहुत सिंपली वर्डेड है, ज्यादा मारा मारी नहीं है। हाँ, एक बार जब पहली बार पढ़ते हैं तो कुछ कंफ्यूजन आता है क्योंकि यहाँ लिस्टेड है, वहाँ अनलिस्टेड है, वहाँ अनलिस्टेड है, वहाँ स्टॉक एक्सचेंज है, पर ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब समझ जाते हैं। अब चैप्टर 6A की डिडक्शन ओनली आफ्टर रिड्यूसिंग सच गेन्स, वो जैसे 111A में था, 112 में था, इसमें भी 6A की डिडक्शन आपको इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर नहीं मिलती है। बाकी इनकम्स पर आप ले लीजिए जो भी आपको मिल सकती है। यहाँ पर जिक्र है 87A का। इन्होंने कहा रिबेट अंडर सेक्शन 87A ओनली आफ्टर रिड्यूसिंग सच। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज वो आपको पता है 87A आपको तब मिलता है जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम हो। सपोज आपका 1 लाख की आपकी अदर इनकम्स है और 3 लाख का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। पहले तो इस 3 लाख को 1 लाख के साथ ऐड कीजिए, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन। इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन एक बेनिफिट मिल जाएगा इनका। तो आपकी टोटल इनकम हुई 4 लाख, तो 5 लाख से कम है, आप 87A ले सकते हैं। लेकिन आप इस पूरे 4 लाख पर 87 नहीं ले सकते। 3 लाख को फिर से वापस कीजिए और 1 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कीजिए और 12,500 अगर उससे कम बनता है तो। ये मेरा एग्जांपल थोड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि 1 लाख पर तो आपका टैक्स लगेगा नहीं, पर चलिए जो भी है, मतलब जो 87A की रिबेट है वो इन केसेस में नहीं मिलेगी। लेकिन जो मैं एग्जांपल से बताना चाह रही थी कि वो जो 5 लाख आपको कैलकुलेट करने ना 87A के लिए, वो टोटल इनकम में आपका ये कैपिटल गेन जाएगा एक बार को कैलकुलेट करने के लिए, वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट।
आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर सब मिलाकर आपकी 5 लाख से कम की इनकम होती है तो। लेकिन इस पोर्शन पे आपको 87A नहीं मिलेगा, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उस पर आप मिलता है तो ले लीजिए 87। इसमें इंडेक्सेशन नहीं होता, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लिस्टेड सिक्योरिटीज सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, उसमें कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलता, वो तो अपने आप ही फेयर मार्केट वैल्यू पर चलते हैं ना। नो फॉरेन करेंसी बेनिफिट ऑफ नॉन रेजिडेंट को इन केसेस में फॉरेन करेंसी का वो जो डीटी बाइंग डीटी सेलिंग रेट से जो प्रोपोर्शन करते थे वो भी नहीं। चलिए इसके आगे ये ग्रैंडफादरिंग, एक आपको याद होगा जब बजट आया था 1 फरवरी 2018 में, जब बजट आया था उससे पहले हम सबको पता है वो पेनी स्टॉक बहुत चल रहे थे। 1038 की एक एग्जेम्पशन होती थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका अगर शेयर्स में होगा तो वो आपका एग्जाम्प हो जाएगा 1038। उसका फायदा उठा के बहुत सारे वो पेनी स्टॉक वगैरह किए गए। उसका मैकेनिज्म मैं आपको नहीं बताऊंगी, आई होप आप सबको पता ही होगा। तो उसको प्लग इन करने के लिए, वो जो लूप होल आ गया था उसको प्लग इन करने के लिए एक ये अमेंडमेंट आई थी 1 फरवरी 2018 को, जब वित्त मंत्री ने भाषण दिया था अपना बजट का। तो उन्होंने कहा था भाई अब तो ये है कि आप परचेज के टाइम पर भी आपने एसटीटी दिया और सेल के टाइम पर भी एसटीटी दिया। अब लेकिन भाई जब भी कोई नया प्रोविजन आता है तो उसका एक ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन तो बनाना ही पड़ता है। ट्रांजिटरी जिसको कहते हैं कि ट्रांजिशन में जो शेयर्स हैं उनका क्या होता है, तो ये एक ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन आया सेक्शन 55(2)(AC। इसने कहा जो इन्वेस्टमेंट्स आपने 1 फरवरी 2018 से पहले कर 31 मार्च 2018 तक जो शेयर्स आपने खरीद रखे हैं उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो जैसे निकलती है वैसे ही निकलेगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी जैसे निकलती है वैसे ही निकलेगी, लेकिन उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इन्होंने एक अलग से फॉर्मूला दे दिया। इन्होंने कहा उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी हायर ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने पैसे में आपने एक्चुअली खरीदे थे, और lower of actual sale or market value as on 31 जनवरी 2018। इसका थोड़ा सा हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा। सपोज मैंने कोई शेयर्स 1 फरवरी 2018 के बाद 5 करोड़ रुपए के बेचे, 5 करोड़ के बेचे तो मेरा सेल प्राइस है, और उसको मैंने 4 साल पहले 2 करोड़ का खरीदा, ठीक है, ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट हो गई 2 करोड़, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को सपोज 3 करोड़ थी, 31 जनवरी 2018। अब ये कैसे निकलेगी? 31 जनवरी को जो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि लिस्टेड शेयर्स की बात हो रही है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो भी इसकी वैल्यू आ रही थी, जो भी इसका मैक्सिमम जो भी इसकी वैल्यू आ रही थी वो ले लेंगे। अगर 31 जनवरी को नहीं है तो 30 को, 29 को, जब भी वो लास्ट ट्रेड हुआ होगा तब ले लेंगे। ऐसी कुछ किताबें हैं बाजार में जो सारे शेयर्स की रेट बताती हैं 31 जनवरी 2018। तो अब मेरे केस में क्या हुआ, 5 करोड़ का मेरा सेल प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट मेरी 2 करोड़ की है, तो मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालती हूँ। ए होता है एक्चुअल कॉस्ट मतलब 2 करोड़, बी होता है लोअर ऑफ एक्चुअल सेल मेरी 5 करोड़ की है, और मार्केट वैल्यू मैंने कहा मेरी 3 करोड़ की, इनमें से लोअर मतलब 3। अब 2 करोड़ और 3 करोड़ इसमें से जो भी हायर है मतलब 3 करोड़, तो 3 करोड़ मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। सेल प्राइस मेरा 5 करोड़ है तो मैं टैक्स दूंगी 2 करोड़। आई थिंक आई एम क्लियर। अभी इसको थोड़ा और ठीक से बताने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरा सेल प्राइस 5 करोड़ है और मेरा एक्चुअल कॉस्ट मेरा 6 करोड़ था, और 31 जनवरी 2018 को मेरा जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो सपोज 4 करोड़ थी, क्योंकि मेरी सेल प्राइस 5 करोड़ है, तो 4 करोड़ और 5 करोड़ में से जो भी लेस है वो 4 करोड़ हुआ, और 6 और 4 में से जो भी हाई हुआ 6 करोड़ हुआ, क्योंकि मैंने 5 करोड़ का बेचा है, 6 करोड़ की मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती है, तो मेरा 1 करोड़ का लॉस है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इतना मुश्किल नहीं है। 2 बार अगर प्रैक्टिकली किसी का कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी उसकी रीजन। भाई उन्होंने क्या कहा कि भाई पुराने शेयर खरीदे हुए हैं तो 31 जनवरी के बाद आई है ना,
अमेंडमेंट, तो 31 जनवरी की जो फेयर मार्केट वैल्यू है हम उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और अगर वो सेल वैल्यू अगर उससे भी कम है तो सेल वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट जो भी आपकी हायर होगी वो आपकी कंसिडरेशन होगी। ये ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन है। चलिए इससे आगे अब देखिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से पहले। अभी तक जितना भी हम कर रहे थे, जो भी हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, दैट वाज इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने एज एन इन्वेस्टमेंट कोई शेयर्स रखे हुए हैं और उनको मैं बेच देती हूँ या ट्रांसफर कर देती हूँ, मैंने शुरू में बोल दिया ना, मैं ट्रांसफर को सेल बोलूंगी सो दैट अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। तो अगर आपने कोई शेयर्स बेचे हैं, ट्रांसफर किए हैं और उन शेयर्स को आप एज एन इन्वेस्टमेंट रख रहे थे, तो अभी तक हम सारा वो ही पढ़ रहे थे। अगर आप एज अ बिजनेसमैन कोई शेयर्स की सेल कर रहे हैं तो आपको 50C में जाने की जरूरत नहीं है, आपको 111A या 112 या 112A में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे सेक्शन सिर्फ कैपिटल गेन्स की बात है। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो ये मैंने शुरू में बोला भी था कि मेन जो इश्यूज आते हैं वो इन्हीं केसेस में आते हैं, बिजनेस में इतने नहीं आते। अगर आप अपने बिजनेस के लिए रखे हुए हैं तो इतना कोई मारामारी नहीं आती है, और अगर आपने कैपिटल एसेट रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ इश्यूज आते हैं, जो मैंने कोशिश करी है सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की। आप एक बार, लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि आप एक्ट जरूर पढ़िए, एक्ट से ये सारी चीजें निकल कर आती हैं, और पढ़ के देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैं तो जब भी फ्री होती हूँ ना, रात को भी सोने से पहले मैं एक्ट हाथ में ले लेती हूँ, एक आधा कोई प्रोविजन जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा। देखिए आपको पता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट बहुत बड़ा है, कितनी भी पार्कियों, जो मैं हाथ जोड़ के कुछ पार्कियों का नाम अलग हटाना चाहूंगी, डॉक्टर गिरीश आहूजा हो गए, वेद जैन जी क्योंकि मेरे गुरु रहे हैं, तो ऐसे हैं कुछ लोग। अदरवाइज हमारे जैसे जो छोटे लोग हैं, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, हम चाहे कितने भी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम चाहे किसी भी ओहदे पे रह चुके हो, पूरा एक्ट किसी को नहीं आता है, नहीं आता है। अभी भी कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं, कोई लेकर आता है, वो कहता है ये वाला सेक्शन, मैं कहती हूँ क्या है इस सेक्शन में, पहले पढ़ के बताओ, फिर एक्ट खोलते हैं, फिर सेक्शन खोलते हैं। लेकिन दिस एक्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्ट, तो इसलिए पढ़िए, मजा आएगा। और ये सेक्शंस क्योंकि मैं ये शेयर करने वाली हूँ भारद्वाज जी से, सबको मिल ही जाएगी, तो आई होप ये भी आपके लिए यूजफुल हो। चलिए, कैपिटल गेन की बात हो गई, अब बात करते हैं बिजनेसमैन, ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ अ बिजनेस, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब देखिए, अगर मैं एज अ ब्रोकर होल्ड कर रही हूँ शेयर्स को, मैं शेयर्स को बेचने खरीदने का काम करती हूँ, मेरा बिजनेस है शेयर्स बेचना, तो उस केस में मुझे जो एसटीटी पेड होता है वो खर्चा अलाउएबल है अंडर सेक्शन 36 में। यहाँ पर एक क्लैरिटी आपको और दे दूं, जो मैं कैपिटल गेन्स में देना भूल गई या रह गया, लेकिन यहाँ से निकल कर आता है, एसटीटी को खर्चा फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर नहीं माना जाता अगर आप कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं। If you are holding shares as an investment, when you are transferring the shares through stock exchange और आपने STT पे किया है, तो वो जो STT का खर्चा है सेल के टाइम का, वो आपको एज एन एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आपका खर्चा और आपको मिल जाएगा। नो एसटीटी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, ये मैं बता चुकी हूँ, यहाँ लिख दिया हमने। डेरिवेटिव्स का अगर आप काम कर रहे हैं तो दैट इज ऑलवेज अ बिजनेस। डेरिवेटिव्स को आप भी ये नहीं कह सकते कि ये मेरा कैपिटल गेन है या मेरा कैपिटल एसेट है, क्योंकि डेरिवेटिव्स में तो फिजिकली कोई डिलीवरी होती नहीं, और फिजिकल डिलीवरी नहीं होती तो वो तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती। अब ये कुछ रीजंस होते हैं ना, जो मैंने शुरू में भी इलैबोरेट किए थे। इन्वेस्टमेंट के पीछे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो देयर आर सम लॉजिक्स, कुछ चीजें हैं कि मेरे पास, मैंने पैसे कमाए, देयर वाज सम इनकम, उस इनकम में से मैंने इतना खर्चा कर लिया, मेरा इतना बच गया, ये मेरी सेविंग्स थी, उस सेविंग्स में से इन्वेस्टमेंट कर दिया। इतना सिंपल ही फंडामेंटल लेकर चलते हैं इनकम टैक्स में। तो आपने जब अपनी ही कमाई को, की सेविंग्स को जब आप इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, तो शायद
इट्स अ लॉजिकल थिंग कि आप उसको डेरिवेटिव्स में नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तो आप मानेंगे ना कि डेरिवेटिव्स में रिस्क ज्यादा होते हैं, और डेरिवेटिव्स में क्योंकि फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, तो डेरिवेटिव्स में आप जब भी डील कर रहे हैं तो उसको बिजनेस ही माना जाएगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं माना जाएगा। वो 45(2) में लिखा हुआ है कि 45(4) है आई थिंक, उसमें लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव्स में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो पुट कॉल जो होती हैं उसमें अगर आप कर रहे हैं तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं माना जाएगा, लेकिन इट्स अ बिजनेस प्रोसेस फॉर ऑडिट टर्नओवर। अब अगर 44(a)(b) में आपको ये कैलकुलेट करना है कि आप डेरिवेटिव्स में डील कर रहे हैं तो क्या आपको ऑडिट कराना है या नहीं कराना, तो हाउ टू कैलकुलेट द टर्नओवर, आप वो टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जितने भी आपने ट्रांजैक्शन करे पूरे साल में, उसके सारे प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी दोनों को ऐड कर दीजिए, पूरी टर्नओवर को नहीं, क्या बेचा क्या खरीदा। मुझे एक्चुअली आई डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो मुझे आइडिया नहीं है किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज से आपको मिलता है, लेकिन जो भी आपके पूरे साल में प्रॉफिट्स हुए, जो भी आपके लॉसेस हुए, दोनों को ऐड कर लीजिए, वो आपका टर्नओवर हो गया फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 44(a)(b) कि आपको ऑडिट कराना है या नहीं कराना, तो वो आपका टर्नओवर हो गया। किसी ने पूछा था कि 44(a)(d) मिलता है क्या अगर हम डेरिवेटिव का बिजनेस करें। ये डेरिवेटिव के बिजनेस में 44(a)(d) में एज सच तो कोई कहीं नहीं लिखा कि आपको डेरिवेटिव का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा 44(a)(d), आप नहीं ऑप्ट कर सकते, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है 44(a)(d) मिलता नहीं डेरिवेटिव। उसकी वजह शायद यही है कि उसमें बहुत सारा स्पेकुलेशन इन्वॉल्व होता है, फिजिकल डिलीवरी नहीं होती। आपको हम प्रिजम्पटिव में तो नहीं जानते, ये मैं प्रैक्टिकली ऐसे ही बता। अब अभी तक जो पढ़ा वो सारा सेलर के हाथ में था, जो शेयर्स को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरर कह सकते हैं मैं टेक्निकली, नॉट सेलर, नॉट ऑलवेज सेलर, ट्रांसफर तो बहुत तरीके से होता है। तो अगर मैं शेयर्स को ट्रांसफर कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ एज एन इन्वेस्टमेंट और एज ए स्टॉक इन ट्रेड, वो हमने अब तक पढ़ा। अब मैं बात करती हूँ, अगर किसी बायर ने, जिसने खरीदा है शेयर, तो उसके हाथ में क्या टैक्स इम्प्लीकेशन आएंगे। देखिए, बायर के हाथ में एज सच तो कुछ नहीं आती, बायर वैसे भी कोई चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, टैक्स इनकम पर लगता है, वो तो जो बेचता है उसके हाथ में लगता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है 56(2)(10) में, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से समझा रही हूँ। अगर आपने कोई शेयर खरीदा और आपने उसको फेयर मार्केट वैल्यू से कम में खरीद लिया, तो वो जो गैप है ना, फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के बीच का जो गैप है, वो सेलर के हाथ में तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मतलब जब वो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो वो वाला जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, तो उस टोटल अमाउंट पर उसके टैक्स के तरीके में बताई चुकी हूँ। लेकिन बायर के हाथ में भी वो जो गैप होता है, तो बेसिक प्राइस तो हो नहीं सकता, वो तो मैंने पे किया है, मैंने 50 लाख रुपए पे किए, लेकिन वो जो शेयर्स थे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकल कर आती है 60 लाख, तो ये 10 लाख रुपए मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत। तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया, अपनी तरफ से कोशिश करी है सब कुछ करने की। और मैं फिर से एक बार सबसे कहूंगी कि 111(a), 112, 112(a) को अच्छे से पढ़िए एक्ट में। कोई जरूरत हो, कोई परेशानी हो तो मेरे से कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे जो कांटेक्ट नंबर्स हैं वो भारद्वाज जी के पास और गुप्ता जी के पास हैं। कांटेक्ट मी एनी टाइम, माय ऑफिस एनी टाइम। और ये पीपीटी मैं शेयर कर लूंगी, तो जी आई थिंक गुप्ता जी मेरा तो हो गया। हाँ देखिए जी, तो इट वाज रियली वेरी नाइस। अब अभी पार्टिसिपेंट्स का कोई भी सवाल हो तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द स्पीकर। किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई भी सवाल हो तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं सवाल। मैडम No अपना ना question. ईमेल आईडी वगैरह भी आप एक बार डिस्प्ले कर दीजिए इफ पॉसिबल, तो लास्ट स्लाइड में होना चाहिए शायद वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। नंबर So भी these है are the हमारे। these are the contact details of Rano Jain ji and our team members. So you can contact.
either of these persons and देखिए गुप्ता जी, parent मुझे has- बड़ी ये जो टॉपिक है ना, इसमें कई बार जब जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो एकदम से हाँ जी नहीं आते, क्योंकि हम्म, देखिए ये तो मानना पड़ेगा कुछ